See, what I personally believe, you're not taking care of your health today, you're gonna regret later on, but that regret is not gonna work for you. Hey everyone, how are you? I hope you all are doing well. And in this particular video, actually, I did a live on my Instagram, IGTV Instagram, whatever you can say that, with Monali, who is in health and fitness niche, and we have this awesome, you can say valuable kind of question related to health and fitness, body type, the you can say vitamins, calorie, and a lot of stuff that is actually a lot more valuable session. I can say that. So before you're gonna jump into the video, make sure to just subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notification when I upload any new video. Now let's begin. Hey guys, this is Monali Rambhar and I am from Nagpur, Maharashtra. Today, today I am coming live with a superb friend of mine, Vishal. Thank you. And during this live session, I will be answering a lot of questions. Well, it's अगर मेरी प्रोफेशन की बात करें, so I am a medical student. I am doing operation theater technician course and I assist surgeon during surgery. So this is my work and love my field, and it's my passion. It comes naturally from you. So yeah, this is all about me. That's great. That's great intro. Right. So yeah. I want to add here. Actually, half of the world population is suffering from heart disease. So my micro niche is about this. I want to help people regarding their heart health. I want to, aware them. I want to give them knowledge how they can, keep their heart healthy. Because just see, if I am saying that half of the world population is suffering from heart disease, means corona के भी इतने patients नहीं होंगे जितने heart disease के. Right. Yeah, millions of people are dying every year just because of this. So that's why I want to make aware regarding their heart health. Yeah, that's great. So this is great. In my life. Amazing. So let's start with the first question, and the first question that I have, what is body type? And because see, we just see any kind of video they're talking about you can do this kind of stuff so you can burn calorie and kind of stuff, but what do you think, if you're not aware about your body type, then that's not going to work for you. So can you give a detail about what is body type? Okay, so first of all I want to tell you that there are three type of body type. Okay, the ectomorph, mesomorph and endomorph. देखिए, should I explain in Hindi so that people can understand very easily? Sure. Yeah. So if we talk about ectomorph people, ectomorph जो बॉडी टाइप वाले होते हैं वो लोग होते हैं जो बहुत ही थिन होते हैं एंड लंबे होते हैं. सो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो बहुत पतले होते हैं लेकिन कितना भी खाना खा ले उनका कभी वेट गेन नहीं होता. सो these type of people are actually ectomorph, and इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी से ये फूड्स को मेटाबोलाइज कर लेते हैं. दैट्स व्हाई ये इतना थिन रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई फैट रिस्टोर नहीं कर पाते, फैट को स्टोर नहीं कर पाते अपने बॉडी में. एंड अगर बात करें वेट गेन की और मसल गेन की, तो इस टाइप के पीपल को, इन तरह के लोगों को मसल गेन करने में और वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ectomorph people. Okay. Then the second is mesomorph. Mesomorph, they are इनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि ये इजीली वेट गेन भी कर सकते हैं, वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं. एंड जो मसल मास होता है ये इनकी बॉडी से नेचुरली आता है. एंड इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है. That's why they can also gain the weight and also reduce. And if we talk about the body type, that is endomorph. So body type के people होते हैं, they are actually a very fat person, वो बहुत curvy होते हैं and वो easily अपने body में fat store कर सकते हैं. They can easily store body, and ऐसे लोगों को weight control करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. आपने सुना होगा कि बहुत सारे मोटे वो खाना ज्यादा नहीं खाते लेकिन इतना सब भी खाते तो उनका वेट बहुत. This is because of actually that those body types. So there are three types of body type. ectomorph जो बहुत thin होते हैं, and mesomorph जो मीडियम्स होते हैं, and endomorph जो बहुत फैट होते हैं.
करें कि हमें क्यों, देखिए वी शुड अवेयर अबाउट आवर बॉडी टाइप, क्योंकि हमारा जो बॉडी टाइप है वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह की डाइट लें, हम किस तरह की एक्सरसाइज right. करें। Right. अगर आप बॉडी टाइप से अवेयर नहीं हो, एंड इफ यू वांट टू गेन लूज, इफ यू वांट टू गेन वेट और लूज वेट, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको वेट गेन करना है एंड यू डोंट नो अबाउट योर बॉडी टाइप, तो अगर आप कुछ भी न्यूट्रिशन ले लो, कुछ भी डाइट ले लो या कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, इट विल नॉट गोना वर्क। अगर वो वर्क भी करेगा तो इट विल फेल, बिकॉज you are not taking that much that thing according to your body type. So that's why your Right, body right. type, know about our body type, to aware about our body type is very much important. You must know about your body type, then only you know you can plan all this thing. So इतना important होता है हमारा body type का जानना। That's Right. It's like so much important because अभी मतलब बहुत सारे फ्रेंड है ना, तो बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। मतलब वो लोग जैसे अभी एक्टोमॉफ होता है ना, कुछ भी खा ले वेट बढ़ जाता है, तो वो लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, यार मेरे को समोसे नहीं खाने, मेरे को ये नहीं खाना, लाइक हमारे जैसे लोग यार सब कुछ खाते हैं फिर भी मतलब कुछ नहीं होता। सो या वी हैव सम काइंड ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अवेयर अबाउट बॉडी टाइप, राइट? And that's great explanation actually. Thanks for that. And next question that we have, what is nutrition and what is good or bad nutrition? सी अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन सिंपल शब्दों में वो होता है जो खाना हम खाते हैं और उस खाने से जो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है, ताकि यू नो डेली जो फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उसके लिए एनर्जी मिल सके, दैट इज अ न्यूट्रिशन। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गुड न्यूट्रिशन एंड बैड न्यूट्रिशन, सो गुड न्यूट्रिशन इज दैट जो आपको हेल्थी रखे, जो आपको स्ट्रांग रखे, जो आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को हेल्प करे अच्छे से फंक्शन करने में, यू नो जो आपको हर प्रोसेस में हेल्प करे, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखे। सो दिस इज कॉल्ड द गुड न्यूट्रिशन। सो द फूड विच इज कम इन गुड न्यूट्रिशन, that food is rich in carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. So अगर सिंपल भाषा में कहे तो वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, एग, फिश, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट मीन्स जो दूध से बनी हुई चीजें होती है, लाइक यू नो मिल्क, पनीर, योगर्ट, ऑल दिस फूड। तो ये सारी फूड जो है ये गुड न्यूट्रिशन के यू नो अंडर में आते हैं। दीज ऑल आर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड वी शुड टेक दिस गुड न्यूट्रिशन, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। Right. Then the bad nutrition is that जो यू नो हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रोनिक डिजीज के चांसेस को बढ़ाता है। जब अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, तो उनमें से तो क्यों वो सफर कर रहे हैं? क्योंकि अपने बैड ईटिंग हैबिट्स के वजह से। They are eating a lot of junk food, fried fast food. In my every video, I told people that I am not against junk food. Even I also used to eat junk food in my, childhood. बैड न्यूट्रिशन की, तो बैड न्यूट्रिशन वो होता है जो आपके इम्यूनिटी को वीक करता है। बैड न्यूट्रिशन इतना खतरनाक होता है कि आपके बोन के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके बोन को रिड्यूस कर सकता है, आपके बॉडी में स्ट्रेस को इम्प्रूव कर सकता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बैड न्यूट्रिशन हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज, इवन आपका वेट बढ़ सकता है। एंड वेट बढ़ना is okay, but अगर वो excessive हो गया, so then you will become obese, and when you will become obese, so you are actually at the risk of heart disease. So that's why you should eat good nutrition. So the example of bad nutrition is junk food, deep fried fast food, sweet dessert, chocolate, candy, and that sugary carbonated beverages. ये जो सारे फूड होते हैं, लाइक दैट पेप्सी, कोला, मिरिंडा, all these sugary carbonated beverages. So next question that I have, that how much calories should we have to consume on a daily basis as per the body type? As per the body type? No, it isn't. It is actually as per the woman and man. It is according to man. Yeah. Okay. So in case of man, the man can consume, or the man can take 2,500 calories, and the woman can consume 2,000 calories. That's it. But this is, I am talking about the average. हम बोलते हैं ना कि एक रफ amount. So
So Yeah. yeah, this is the only average. But if you know the exact number, so what you can do, there is one app in Play Store which is called, आपको ये app Google पे भी available मिलेंगी, which is called calorie calculator app, amount of calorie that you should take. Okay, So that's great. yeah, this is if you want to know about the exact number. But अगर हम average की बात करें, so man should take 2,500 calories and women should take 2,000 calories. That's it. 2000, that's great. Okay, now let's move ahead, and that's like a great question that I can say that. How to be 100% healthy? Like a lot of people asking that, how to be healthy, and this question, how to be 100% healthy? Okay. See, health is divided into two categories. The physical health and mental health. अगर आपको वाकई में अपने लाइफ में हेल्थी रहना है, तो being physically healthy is not only important, but being mentally healthy is also important. आपको दोनों तरह पे ध्यान देना चाहिए. If you are just physically healthy, you are fit. अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, they are body builders, but mentally they are not healthy. They are suffering from depression, anxiety and all. So you are actually not healthy. Right. So if you really want to be 100% healthy, make sure कि आप physical के साथ mentally भी healthy हो. Negative thing inside his mind. बहुत सारी negative चीज है उसके mind में. दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते. They are jealous. So that person is not actually healthy 100%. So keep working your mind कि आप physically के साथ अपने mentally भी मतलब healthy रहो. That is very much important. क्योंकि mental health भी बहुत affect करती है हमारे body को. Right, That's right, why. right. How often should we have to do workout? Weekly, 5 days. 5 5 days. days in a week. Like Yeah, it's very 5 days. short on. Yeah. Yeah, you should take rest. Then आप Saturday and Sunday rest ले सकते हो, so that you can recover. But at least 5 days in a week, you should do workout. It is very And much then important. what is the average duration that we have to do workout? Like 1 hour, 2 hour, 3 hour? See, अगर आपको सिर्फ वर्कआउट करना है अगर आपको सिर्फ वर्कआउट करने के लिए वर्कआउट करना है, देखो एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो वाकई में फिट और हेल्थी रहना चाहते हैं, सो दे डू वर्कआउट गुड एटलीस्ट फॉर 1 and 2 hours. लेकिन एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको लोग पुश करते हैं, यार वर्कआउट करो, सो दे कैन डू 15 to 20 minute वर्कआउट. तो अगर हम yes, this is true and I have seen those type of people. So if you are only doing वर्कआउट सिर्फ मन के शांति के लिए या कोई बोल रहा है, सो 30 minutes इट्स ओके. और अगर आपको वाकई में हेल्थी रहना है अपनी लाइफ में, सो यू शुड डू एटलीस्ट 45 to 60 minutes ऑफ वर्कआउट. That's great. One question that comes from Mana's side: is it necessary to go gym for the workout? No, I didn't go gym. I do my all workout on home. No, ऐसे कोई भी जरूरत नहीं कि आप जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हो. Even there are lots of exercise जो आप घर में भी कर सकते हो. Like upper body के लिए आप पुशअप्स कर सकते हो, abdomen के लिए आप क्रंचेस कर सकते हो, लोअर बॉडी के लिए there are lot of exercise like squats and frog jumping squat. There are lots of exercise. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो होम वर्कआउट करके बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज है. एंड सीरियसली आई हैव गेन माय सम वेट इन जस्ट माय होम, जस्ट डूइंग होम वर्कआउट एंड टेकिंग प्रॉपर diet. Yes. Let's move ahead for the next question. And it's like how often should we have to take non-veg in a week? It should be like thrice in a week. Yeah, thrice in a week. And a lot of people, they eat daily. I have seen some doctors, they eat daily. But no, it should yes actually, because किसी की habit होती है, they don't like non-vegetarian food. And अगर हम non-veg food की बात करें, so non-veg food is very good source of high protein. बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है non-veg food में, बहुत ज्यादा. And वेजिटेरियन चीजों में या वेजिटेरियन फूड्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते जो नॉनवेज फूड में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई नॉनवेज फूड खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि अगर हम बात करें, लेट्स टेक वन एग्जांपल. इफ यू टॉक अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड,
ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ना वेजिटेरियन फूड्स में होता है, ना हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये सिर्फ फिश में प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ फिश में प्रेजेंट होता है, या फिर फ्लैक्सीड में प्रेजेंट होता है, कैनेला ऑयल में प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो स्मॉल, जो प्रेग्नेंट वुमेन का बेबी रहता है उसके ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसके नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ मच जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें नॉर्मल फूड या फिर वेजिटेरियन फूड से नहीं मिलेगा, एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो वी शुड ईट एटलीस्ट थ्राइस, और अगर थ्राइस भी नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वेजिटेरियन। See, next question is like in nowadays what we are doing, like some people are like अभी क्या बोलते हैं ना, कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है, so we are like nowadays scheduling is so much different. कोई 2 बजे Yes. सोता है, कोई 3 बजे सोता है, so how this kind of scheduling affecting our health basically? सी देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वाकई में अपने लाइफ में हेल्थी रहना चाहते हो तो एक प्रॉपर नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आप देखिए, अगर कोई इंसान अगर वेट गेन करने भी जा रहा है या वेट लूज करने भी जा रहा है, तो वो प्रॉपर डाइट तो लेता ही है, स्ट्रेस भी नहीं लेता, लेकिन उसके लिए नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 8 आवर्स की। सो सी, दिस इज हाउ मच गुड स्लीप इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अच्छी, देखिए आप दिन भर काम करते हैं, जिस तरह से आपका फोन दिन भर आप अपने फोन को यूज करते हो, जब वो डेड हो जाता है तो आप उसको रिचार्ज पे लगाते हो, ठीक है। इसी तरह से आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी दिन भर काम कर रही होती है, आपका ब्रेन दिन भर काम कर रहा होता है। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जब सोते हो तो एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद लो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिचार्ज हो सके, ताकि दूसरे दिन वो और अच्छे से काम कर सके। बट अभी लोग तो मतलब जल्दी सोते नहीं है, कुछ 12 बजे से। Sorry. I'm sorry, but मतलब जो सच है, I want to say real. They sleep at 12. Some people they sleep at 4. It's okay अगर कुछ काम की वजह से आप अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या अगर वो कंडीशन फेस कर रहे हो, इट्स ओके, बट मेक श्योर कि उसके बाद आप एटलीस्ट 8 घंटे की नींद ले रहे हो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो आगे जाके आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यू नो व्हाट, नींद ना लेने का, अच्छी नींद ना लेने का एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट ये है कि स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, क्योंकि आप बॉडी को आराम नहीं देते हो ना। आप बोलते हो कि यार मुझे स्ट्रेस क्यों आ रहा है, आप मुझे स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप बॉडी को आराम ही नहीं देते, आप उसको अच्छी तरह से रिचार्ज ही नहीं होने देते। वो तो रिचार्ज भी नहीं होता, आप उठा देते हो उसको और आप एकदम काम करना शुरू कर जाते हो, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा। So I hope you got the value from this video, and if you got the value from this video, please do share this video to another people so that they get benefited as well. And as always, yaar, keep smiling and be happy, and thank you very much.